Hello friends, myself Juhi Patel from Takshila English School Aider. In last video we are done with the structure of heart and mechanism of heart. Now in this video I am going to describe you about the blood pressure. Okay, so blood pressure means high pressure. You can say high pressure is known as a blood pressure, or first of all it is also known as a hypertension, and the hypertension for a long time is called as a blood pressure. So the force that blood exert against the wall of vessel is called as blood pressure. Means whatever the force by blood is exerted against the wall of arteries and veins. Vessels mean blood vessels, and which vessels? The arteries and veins. So the force exerted by the blood against the wall of the arteries and veins against the wall of a vessel is called as blood pressure, and the pressure is much more in arteries than in veins. I already told you that arteries have a thick wall and it has a high pressure because it has to transfer all the oxygenated blood to every and each cells, because to transport the oxygen to every cells it needs high pressure. So arteries have more pressure than the veins. And the pressure of blood inside the artery during ventricular systole. Now here the new words come, that is systole and diastole. First of all, what is systole? So systole means contraction of heart is known as a systole. Systole means contraction and diastole means relaxation. Okay, so contraction means this, if I talking about the heart, then if here is the chamber of left atria and right atria and this is ventricles. Okay, so if this atria is contract, then means atrial contraction or atrial systole. If this ventricular systole means this ventricular contract. Okay, this ventricle when contract is known as a ventricular systole, and if it is in relax mode then it is known as a ventricular diastole or atrial diastole. Okay, so here you can see the during ventricular systole is called as a systolic pressure. Okay, so the pressure of blood inside artery during ventricular systole. So a systole means contraction. Okay, so obviously systolic pressure क्या होगा, contraction होता है, so there is a space वहाँ पे कम हो जाती है, so there will be high pressure. Okay, so when there is a ventricular systole is known as a systolic pressure, and the pressure in artery during ventricular diastole. जब ventricles diastole relax position में होंगे then it is known as a diastolic pressure. Now normal range of systolic pressure is 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg. So here mm of Hg is the unit of pressure. Okay, so systolic pressure normal range is 120 mm of Hg while diastolic pressure is 80 mm Hg. Okay, आप जब भी अपना बीपी चेक करवाने जाते हो तो वहाँ पे जो बीपी हम चेक करवाते हैं दैट मीन्स ब्लड प्रेशर, तो ये उसकी नॉर्मल रेंज होती है, दैट इज 120 to 80. 120 मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, मीन्स 120 mm of Hg, and 80 mm of Hg is the diastolic pressure, and at that time pressure is less, so 80 mm of Hg is the diastolic pressure. Okay, you can see in diagram also. So blood pressure is measured by the sphygmomanometer. Okay, हम जो बीपी चेक करते हैं तो वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं हम sphygmomanometer. Now high blood pressure is also called as a hypertension. I already told you कि when the blood pressure is continuously high, there is a high blood pressure which is continuous in normal condition also. हाँ, अगर हम वॉकिंग करते रनिंग करके आ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा अबाव या लो हो सकता है. जब आप कोई ज्यादा वॉक करके आते हो या रनिंग करके आते हो, एक्सरसाइज करके आते हो, ओके, या फिर किसी को ओबेसिटी है, ओबेसिटी मतलब जिसका वेट ज्यादा है, ओबेस पर्सन, तो उसका बीपी है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है. बट
नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आपका ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। एंड इट इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स मतलब कि जो हमारे आर्टरीज होते हैं उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसकी वजह से प्रेशर है वो ज्यादा रहता है उस वहां पे आर्टरीज में। सो विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। और वहां पे उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। सो इट कैन लीड टू अ रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। और उसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज होती है वो रप्चर्ड हो सकती, डैमेज हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है। तो यहाँ पे आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या याद रखना है, डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मीन्स द फोर्स दैट एक्सर्ट by blood against the wall of vessels is known as blood pressure. Then its normal range. What is systolic pressure and what is diastolic pressure? Means blood inside the artery during ventricular systole. So systolic pressure or pressure in artery during ventricular diastole means diastolic pressure. Its normal range. Then its instrument name, that is sphygmomanometer. Okay. Now our next topic is the tubes or blood vessels. Okay. ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपका आ सकता है दैट व्हाट इज ब्लड वेसल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स मीन्स वी हैव टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू एट दैट टाइम दैट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, वाइल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो वेन्स होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से हमारे हार्ट तक ब्लड को ट्रांसफर करती है। ओके, अब जो आर्टरीज होती है तो उसको हार्ट से ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक पूरा ब्लड पहुंचाना होता है। तो वहां पे जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो आर्टरीज हैव high pressure and arteries are thick and elastic walls. Okay, while veins carry deoxygenated blood but it has some low pressure than the arteries and there is a thin wall of veins. Okay, so ये जो है आपके डिफरेंस में भी आप लिख सकते हो कि आर्टरीज और वेन्स के। Okay, then on reaching an organ or tissue, artery divide into smaller and smaller vessel. अब देखो इसको क्या कहेंगे हम, जो आर्टरीज और वेन्स है वो जहाँ पे जब आगे जाके और स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होती है तो उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। यहाँ पे लिखा भी है देखो, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वेसल्स। ओके, उसको कहते हैं कैपिलरीज। So this is about the blood vessel. There is arteries and veins. Now these capillaries then join together to form veins that convey blood away from the organ or tissue. This is same I already told you. Okay, so this is of circulation system. Now यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक एक और है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स आपको पता ही है, देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो कोएगुलेशन और क्लोटिंग मतलब कि ब्लड का जम जाना। वेन एवर यू हैव एनी इंजरी और एनी कट ओके ऑन योर टिश्यूज, ऑन योर स्किन्स, तो वहां पे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जो ब्लड लॉस है वो रुक जाता है। ओके, तो वो रुक क्यों जाता है, तो वो बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स क्या करता है, वहां पे जो फिब्रिनोजन करके उसके पास फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो वो वहां पे आके जम जाते हैं और थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं क्लोट। तो वहां पे जो क्लोट फॉर्म होता है तो दिस इज डन बाय द प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शन भी याद रख लेना है प्लेटलेट्स का। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फ। तो लिम्फ है वो अनदर फ्लूइड है, जैसे हमारी ब्लड सिस्टम होती है विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड, वैसे ही हमारी लिम्फेटिक सिस्टम होती है। सो दिस लिम्फेटिक सिस्टम
will help to transfer the lymph. अब lymph है उसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, टिश्यू फ्लूइड. सो अब यहाँ पे है ना एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे WBC और ये WBC ज्यादा होते हैं देन द RBC. So through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. अब इसका मतलब अगर आपको पता नहीं चला तो मैं बताऊं कि जैसे हमारे जैसे ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, तो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो ब्लड में जो भी प्लाज्मा, प्रोटीन्स या ब्लड सेल्स है कुछ, तो वो अगर ट्रांसफर होने की वजह से या हाई प्रेशर की वजह से कुछ भी, तो वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में बाहर आ जाते हैं. मतलब उस कैपिलरीज से बाहर निकल के जो टिश्यू होता है वहां पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस में वहां पे एस्केप हो जाते हैं, वहां पे ट्रांसफर हो जाता है. तो वहां पे जो फ्लूइड जमा होता है उसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, या आप उसको लिम्फ भी कह सकते हो. सो इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन. ये इसका जो कंपोनेंट बोले, अगर हम कंपोजिशन बोले, तो इसका जो कंपोजिशन होता है लिम्फ का वो ऑलमोस्ट जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसके रिलेटिव होता है. बट वन डिफरेंस होता है कि ये कलरलेस होता है. क्यों? क्योंकि उसमें RBC कम होते हैं. और दूसरा, इट कंटेन लेस प्रोटीन. जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में उसके कंपैरिजन में लिम्फ के अंदर प्रोटीन है वो लेस होता है. सो लिम्फ का फंक्शंस क्या है? एक तो लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज from intercellular spaces which join to form a large lymph vessels that finally open into larger veins. मतलब जो भी lymph है उससे फिर lymphatic capillaries के थ्रू जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में हमारा जो लिम्फ इकट्ठा हुआ है वहां से वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू सारा जो लिम्फ वेसल्स है वो फाइनली एक लार्ज वेन्स में ट्रांसपोर्ट होता है. एंड दिस लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट. उसमें क्या होता है, मेन जो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट होता है वो होता है. और दूसरा एक होता है कि ये जो है हमारी इम्यून सिस्टम और प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, इट विल हेल्प इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज. इम्यून सिस्टम बढ़ाने में ये हेल्प करता है. ओके, क्योंकि उसमें WBCs भी ज्यादा होते हैं इसलिए. सो इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेक्स एंड बैक इनटू द ब्लड. और यहाँ से जो भी मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर में जो भी फ्लूइड लिम्फ जमा हुए हैं वो वापस से हमारा ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से वो ड्रेन हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द ब्लड लिम्फ, देन प्लेटलेट्स एंड blood vessels and blood pressure. Okay, I hope you understand. Thank you.